Hello students. So now we are coming out with our series of business studies, and today we'll be dealing with the first function of management. You know, business studies divided into 8 chapters in book 1 and 4 chapters in book 2. But in first chapter they introduce the functions which are not that well explained. So we'll try to give you a feeling of the first function today in our lecture 1, where we'll be discussing about what is planning and its importance, the need for planning. Planning की need क्या है? So today we are discussing the chapter 4, planning, the first function of management, business studies, and we will use BST, the best study techniques. So we have a very unique technique of learning also, which we'll introduce in later classes, but today first how you should make notes, how this has to be done, we'll discuss about that, right? So here we go with this with simple word planning. Now planning is something which we all do. चाहे कुछ भी करना हो, पढ़ना हो, प्लान बनाते हैं. इवन एक रोबर को चोरी करनी हो तो प्लान बनाते हैं. बिगर प्लान के तो कुछ भी नहीं होता. So planning is the key to anything. Before you go ahead, you have to plan out things, right? So today we'll see in this chapter how firms, हम और की प्लानिंग पे नहीं जाते, फर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस कैसे प्लान बनाती हैं और क्यों प्लान बनाती हैं, उसके ऊपर हम जाते हैं. Now see the definition. Now you should know we'll be using different techniques for using it, and we'll give you scientific reason why it is done. So don't use linear format. That actually is very harmful for learning. See how we have divided. What is planning? Planning is, the key word is deciding. So in definition of plan, planning is deciding, then in advance what to do. So the words which come as planning is deciding in advance what to do. Okay children, so this is what we have for planning. So let's come to the first word, deciding. This word is so important in this chapter that it will come at many places, and you need to know what does deciding mean. Now you appear for an exam and you have a question in which it is written, paper, answer any 5 out of 8. So now you have a decision to make because there is a choice or alternative. Had there been no choice or alternative, क्या होता? Answer all. तो आपको सारे करने पड़ते. Now there are choices to be made, किसको हम आंसर करेंगे, किसको नहीं करेंगे. तो इसी तरह बिजनेस फॉर्म्स के पास भी जब वो प्लान करते हैं तो डिसीजन मेकिंग का जब क्वेश्चन आता है, देयर हैज टू बी चॉइस. नो चॉइस, नो प्लान. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग, राइट? सो डिसाइडिंग इज बेसिकली व्हाट हैज टू हैव ए चॉइस. तो जब हम डिसाइडिंग की बात करते हैं बच्चों, so we talk of choices. So the word which comes to my mind when planning we will study, we will have to deal with choices, or I can say alternatives, right? तो जैसे अगर हम प्लान कर रहे हैं कि एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करना है, तो एड में किसको बुलाएं, डिसाइड करना है. चॉइसेस, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली और दैट. सो इट इज choices or alternatives, right? So here we talk about choices or alternatives. What are the choices or alternatives? जब अगला वर्ड मैं मूव करता हूँ डेफिनेशन में, तो एडवांस. एडवांस का क्या मतलब है? हम प्री कर रहे हैं, तो मतलब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ऐसा होगा. कोविड के पहले बहुत कुछ एडवांस में सोचा था, जून में घूमने जाएंगे, ये होगा, सब एंटिसिपेट ही तो करते हैं, तो प्लान बनाते हुए. सो व्हाट डू? यू एंटिसिपेट. एंटिसिपेट और फोरकास्ट. तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये कीवर्ड है बेटा. इसका मतलब है जब आप एडवांस में करोगे या प्लानिंग की बात करोगे तो एंटिसिपेट करोगे या फोरकास्ट करोगे, प्रिडिक्ट करोगे, फ्यूचर में पीप करोगे. अब देखो इससे हमें आइडियाज निकल रहे हैं कि हम इस चैप्टर में क्या डिस्कशन करने. फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, गवर्नमेंट करती है, बजट देती है, तो एंटिसिपेट करती है हम इतने खर्चे करेंगे, इतने पैसे आएंगे, फैमिली में बजट बनता है. सो यू ऑल एंटिसिपेट एंड फोरकास्ट कि ऐसे होगा. तभी तो वेदर फोरकास्ट भी आता है, इस दिन बारिश होगी, इस दिन नहीं होगी. सो इट्स ऑल एंटिसिपेशन.
पर फॉर्म्स क्यों करती है भाई? वाई, व्हाट टू डू द थर्ड वर्ड, जिसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पूरे बुक में ही चलता है बेटा, ऑब्जेक्टिव और गोल। वाई डू यू प्लान, किसके लिए इतनी माथापच्ची, वाई दिस मच स्ट्रगल और ब्रेन स्टॉर्मिंग। So what is your objective or goal? Now we have got the crux in this chapter. Decision making will be there. For that I need choices. Advanced में things will be there. So I am anticipating and forecasting in this chapter. Then objective. Why am I doing? What is the goal I want to achieve? So if firm want to be a leader in the सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, तो पेप्सी को लगता है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक में लीडर होना चाहते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, तो उसके लिए वो प्लान कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि कैसी ड्रिंक बनाए, किससे प्रमोट कराए, सब एडवांस में। जियो आया था तो कोई एक दिन में थोड़ी आया कि फटाफट जियो लॉन्च कर दिया था 2016 सितंबर में, ठीक डिमोनेटाइजेशन के पहले। प्लानिंग तो पहले से चल रही होगी, क्या स्कीम देंगे क्या नहीं देंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। सो गाइज, इज इट क्लियर? What is planning? It is deciding, very in simple words, advance what to do. Now, what is the need for planning? Here we go on to the next part. This is the most important thing. Importance of planning, benefits of planning, significance of planning, सारी एक ही चीज है क्वेश्चन में। Why there is a need for planning? Why do you plan? There are many firms who plan their advertisement, budgets, release of movies and these things well in advance. Why bhai? Why a date is chosen? Why this thing is done? There are reasons for it. Without that, nothing will happen. Without that, nothing will happen. Right? So therefore, we need to change. Yes. So okay. So now the importance of planning हमें एक importance है, it provides direction, दिशा देता है। We'll discuss this in detail. One is reducing risk of uncertainty, ये uncertainty को कम करता है। Then overlapping and wasteful activities कम होती है। नए आइडियाज को जन्म देता है। देखो आ गया ना डिसीजन, अभी तो पढ़ा था डिसीजन मेकिंग। एंड establishes standards for controlling. So these are the 6 importances of planning. We'll discuss them one by one. नोट्स कैसे बनाने हैं वो आपको बताऊंगा, एंड इसको याद कैसे करना है। आप चैनल देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यूनिक मेथड बताऊंगा। आई एम ए मेमोरी एक्सपर्ट डूइंग मेमोरी टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग सिंस 9 years, since 2009 guys, right? So we'll use that also. First let us understand this topics one by one. Provides direction. बहुत ब्रीफ में बताऊं तो डायरेक्शन का मतलब है एक्शन। प्लान तो बन गया, प्लान बनने के बाद उसके ऊपर एक्शन। तो हमको अब जब स्कूल शुरू होता है आपका, इस कोविड को छोड़ दो, तो अप्रैल में हसल बसल शुरू होती है, पूरा प्लानर साल का बन गया, अब एक्शन में आ जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, तो गोल्स क्लियर होते हैं, कब तक सिलेबस खत्म करना है, कब क्या होगा, कब टर्म एग्जाम होगा। इसी तरह फॉर्म्स का भी होता है, सेल्स बढ़ानी है इस क्वार्टर में, तो सब एक्शन में आ जाएंगे। गोल्स क्लियर होते हैं, ठीक है ना, गाइड की तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज ए गाइड। और हर के बीच कोऑर्डिनेशन, परचेज वाला परचेज करने में लगता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में लगता है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में लगता है, तो सबको डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ द टॉपिक वन बाय वन। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक वन बाय वन। So let us understand now importance of planning, right guys? Let's go ahead and do importance of planning. So let's begin the importance of planning. So what is the importance of planning? We'll be seeing one by one, right guys? So we'll begin with, so this is chapter 4 and the first topic which we'll be doing is importance of planning. Very important question it comes, right? Right. सबसे पहले था provides direction, दूसरा था reduces risk of uncertainty, तीसरा था reduces overlapping and wasteful activities, right? Fourth, innovative ideas, नए ideas को जन्म देना। Fifth, helps in decision making। Sixth, establishes standards for controlling. Now we'll understand them one by one.
इसको हम एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करता है, डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एक्शन। तो सबसे पहले डायरेक्टर करते ही है एक्शन। सो इट टेल्स व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन, ठीक है ना। सो एक्शन टू बी टेकन, क्या करना है क्या नहीं करना, आप क्या स्टेप लें, ठीक है ना। तो जैसे मेरी सेल्स बढ़ानी है तो सबसे पहले सब लोग, मार्केटिंग वाला ऐड में लग जाएगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में लग जाएगा, परचेज वाला खरीदने में लग जाएगा। गोल्स, बेटा वन इंपॉर्टेंट थिंग इन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट इज द गोल्स हैव टू बी क्लियर। एक ही कीवर्ड है, गोल्स क्लियर होने चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए, राइट। सो इट एंश्योर्स दैट गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड। अगर ये नहीं होगा तो फिर सारा काम खत्म। क्लियरली स्टेटेड, दैट हैज टू बी द की देयर। द गोल्स हैव टू बी क्लियरली स्टेटेड। तो जब हम आंसर लिखेंगे, आई टेल यू, फर्स्ट action, it tells the action to be done. Second, goals, the goals have to be clear so that no ambiguity. Ambiguity का मतलब है no confusion, no confusion, okay. confusion नहीं मांगता बच्चा, confusion, ताकि सब क्लियर है हमें क्या अचीव करना है। जैसे जियो लॉन्च हुआ था तो सब एक्शन में लग गए फ्री बांटने में, पर क्या गोल फ्री बांटना था? नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग को सब्सक्राइब कराना ताकि हम उनको एक बार फ्री का लालच देके ले आए, एंड देन वी गो हेड, राइट। गाइड, इट एक्ट्स एज ए गाइड कि किस स्टेज में हमें क्या करना है। तो जब स्कूल में भी ईयर प्लानर बनता है तो उनको जुलाई में पता होता है हमारा यहाँ तक हो गया, ये हो गया, तो वो उनको गाइड की तरह एक्ट करता है। सबको एक हेल्प मिलती है। तुम भी प्रोजेक्ट बनाते हो, मैम आपको ये बोलती है ना इस पे प्रोजेक्ट बनेगा, और ये गाइडलाइंस होती हैं कि कितना लिखना है, कितने पेज में होना चाहिए, क्या क्या कवर होना चाहिए। सेम विद द प्लान, एक्ट्स एज ए गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एट ए पर्टिकुलर टाइम। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की क्यों बात कर रहे हैं? देखो बच्चों, जब मार्केटिंग वाले वो जाके ऑर्डर लेके आते हैं ये करना है, और उसके बाद प्रोडक्शन वाले को बताते हैं, प्रोडक्शन परचेज को बोलता है, क्या बोलता है परचेज को, कि भाई इतना सामान खरीद के लाओ और इतने में हम ये करेंगे, right? So it tells about coordination between different departments, okay? It tells about coordination between different departments, right? So that is what it tells. Okay, so now we move on to the next, reduces risk of uncertainty. See, you will explain this at this COVID time. No firm had expected that COVID will stop all the business. So what does planning do? Planning tries to anticipate. देखो word anticipate आ गया ना definition से, uncertainty. Demonetization was a uncertainty. But then what is the use? आप कहोगे सर वो तो उसको anticipate ही नहीं किया, कोविड को नहीं किया, तो फिर क्या? But then it anticipates the problems that can arise and tries to give solution. Now for example, you are going to set up a factory, say in Gurgaon near Delhi. Now you know there is a power cut in summer. So you have anticipated that problem. So what you will do? You will try to give a solution to the problem. हाथ में हाथ थोड़ी करके बैठोगे, यार मेरा लेबर खाली है, मैं नहीं। आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाओगे। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आप बाहर मार्केट में जाओ, मोबाइल शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, बड़ी बड़ी दुकानें, उनसे पूछो भाई इंश्योरेंस कराते हैं? क्यों? अनसर्टेनिटी। क्या? थेफ्ट, कभी चोरी हो गई, क्या वो मान के चलता है चोरी होगी? नहीं, एंटिसिपेट करता है अगर चोरी हो गई तो कौन देगा लॉस? फायर, अगर आग लग गई तो कौन देगा? तो दे कवर दैट रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। तो प्लानिंग भी इसी तरह एंटिसिपेट करता है प्रॉब्लम्स दैट मे कम, सो इट एनेबल्स मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस विच में occur। फिर उसके लिए क्या करेगा? सॉल्यूशंस, ये देखो, सो इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम। In a way, it reduces risk of uncertainty. Uncertainty. Exam में दो क्वेश्चन आते हैं. How does planning reduce risk of uncertainty? So answer is this two part. First, it anticipates the problems, looks ahead those changes, and then it tries to give solution to the problem. You can quote any one of the examples I have quoted. So and then it develops managerial response. How managers have to respond in a situation. So planning अनसर्टेनिटी के टाइम, अब कोविड के टाइम हर मैनेजर रिस्पॉन्ड कर रहा है, भाई देखो सब बंद है तो ऑनलाइन शुरू हुआ ना, एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट वर्क फ्रॉम होम, ऐसा तो नहीं है। सो मैनेजरियल रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, राइट? हाउ टू एनकाउंटर दैट, तो दे आर टॉट टू दैट। सो
ये पार्ट पहले दो, रिड्यूस। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया, कैन नॉट एलिमिनेट व्हाट, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्यों? दो चीजें, और ये बहुत, जैसे डिसीजन आएगा चॉइसेस हमेशा दिमाग में रखना, डिसीजन में चॉइसेस कैन नॉट एलिमिनेट। एक, फोरकास्ट कर रहे हैं ना, क्या फोरकास्ट एक्यूरेट हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो एक तो रीजन है, वी कैन नॉट फोरकास्ट एवरीथिंग एक्यूरेटली, सो देयरफॉर ऑल अनसर्टेनिटीज कैन नॉट बी रिमूव। किसी ने कोविड को फोरकास्ट थोड़ी किया था लास्ट ईयर, सब हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे, अब पता चला जी 2020 हैप्पी न्यू ईयर। लाइफ में पहली बार समझ में आ गया 20 - 20 जीरो क्यों होता है, इस साल ने सिखा दी। दूसरा रीजन है, मैं बोलता हूं स्लेप्ट, एक्सटर्नल ट्रेंड्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। स्लेप्ट बेचा, याद रखना आपको, एस सोशल, एल लीगल, ई इकोनॉमिकल, पी पॉलिटिकल, टी टेक्नोलॉजिकल, ये 5 फैक्टर्स। सोशल, कस्टम्स और हैबिट्स, कब लोगों की बदल जाए पता नहीं, कब फैशन में क्या आ जाए, प्लानिंग थोड़ी है, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्लेप्ट। एल लीगल, कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, अभी तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम स्क्रैप कर दिए। तो इसी तरह बिजनेस फर्म्स का होता है, प्लास्टिक यूज नहीं होगा, तो जितने प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उनके लिए एकदम से डिसीजन आ गया कोर्ट का कि ये नहीं है। डीजल कार्स 10 साल के अंदर खत्म, तो जो ओनर है, कंपनी है, सबके लिए प्रॉब्लम आ गई, यू कैन नॉट एंटिसिपेट। लीगल। इकोनॉमिक सिनेरियो, यूएस में रिसेशन आया, करेंसी गिरी, फर्क इंडिया में पड़ जाता है, तो हम कैसे, तो बिजनेस फर्म्स कैन नॉट कंट्रोल दिस ट्रेंड्स, राइट। स्लेप्ट। पी पॉलिटिकल, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले ले, डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट डिसीजन था, पॉलिसी डिसीजन है, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट गवर्नमेंट में डू। अब चाइना से ट्रेड बंद करने की बात हो रही है, सो दोज हु हैव बीन डूइंग ट्रेड विद चाइना, दोस कंपनीज विल सफर। टेक्नोलॉजिकल, अब देखो ऑनलाइन, तुम लोग खुद देखो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो कि नहीं, अचानक से जो मोबाइल एकदम सब कहते थे छोड़ दो घर वाले, अब वही मोबाइल सब कहते हैं पकड़ो देखो देखो, तुम कहो यार क्या बात है, कभी तो हमारे साथ ऐसे होता था, हाँ मम्मी ने कभी बोला है तो मैं पूछा है फेसबुक किया है नहीं किया, ये कहते हैं क्या मोबाइल मोबाइल पूरे दिन ले लेते हो, आज वही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट एलिमिनेट, वी कैन ओनली रिड्यूस, राइट। सो प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क बिकॉज चेंजेस कैन नॉट बी, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, एंड चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जिसको मैंने बोला बेटा स्लेप्ट। एस फॉर सोशल, which can affect organization are beyond the control, किसके है, beyond control, right, so they are beyond the control of the business and therefore risk cannot be completely eliminated। तो इसी के अंदर दो छोटे क्वेश्चन बन गए, why, how does it reduce, ये वाला पार्ट, why it cannot eliminate, दो रीजन, inaccurate forecasting या anticipation, दूसरा slept। slept को जितना मर्जी एलॉबरेट करो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिंपल लिख के छोड़ दो, 4 नंबर का है तो एलाबोरेट कर दो, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है गाइस। चले आगे, बोर तो नहीं हो रहे ना, आइए आगे देखते हैं। रिड्यूसेस व्हाट, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। कई बार क्या होता है, एक ही काम को 2 लोग कर जाते हैं, है ना। ओवरलैपिंग का मतलब है एक ही चीज को डबल करना या वेस्ट या ये करना, तो प्लानिंग ये सब को खत्म करता है। वेस्टेजेस, आप देखिए एफिशिएंसी जब तक नहीं आएगी जब तक वेस्टेजेस कम नहीं करेंगे, प्लानिंग यही काम करता है। सबसे पहला कारण है वेस्टेजेस का कंफ्यूजन, वो कहते हैं पहले तो कंफ्यूजन अवॉइड करो, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करो, बताओ किसको क्या करना है। जब तक कंफ्यूजन रहेगी दिमाग में तो आदमी हमेशा वेस्टेजेस करेगा, या तो वो कर लेगा या ये। क्रिकेट में देखा है, बॉल पकड़नी है, वो कहता है तू पकड़, वो कहता है मैं पकड़, बीच में लैंड करती है, और कोई एक कॉल दे देता है तो दूसरा रुक जाता है। इसी तरह बिजनेसेस में भी ये जरूरी है कि कंफ्यूजन हटाना है, कंफ्यूजन इज द की। दूसरा क्लैरिटी इन थॉट, पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है। तो जैसे जियो लॉन्च हुआ, सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक ही काम था, फ्री बेचो पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ, और रूरल को भी लेके आओ क्योंकि हमको पैन इंडिया कवर करना है। सो क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। जब तुम्हें कोई बोले ना कोई पैसे नहीं देना है तो इंडिया में तब तैयार हो जाते हैं। तो जियो का क्या मंशा थी ये तो अब समझ में आ गया, एयरटेल वोडा सबको उड़ा दिया है, लीडर हो गया जियो इन टेलीकम्युनिकेशन, आगे की गोल था वो। स्मूथ वर्किंग, इससे वर्किंग स्मूथ हो जाती है। जब देखो कंफ्यूजन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, वेस्टेजेस नहीं है, सब अपने काम आराम से कर रहे हैं। शादी देखिए, शादी में अगर सही प्लानिंग हो तो कभी नहीं, नहीं तो क्या होता है, अरे दूल्हा आ गया,
वरमाला ढूंढो, कभी अंगूठी ढूंढो, वही मेन चीज है। सब अपने मस्ती तैयार होने में लगे, अंगूठी किसी को दी थी भूल के रख गए, तो वर्किंग स्मूथ नहीं होती। सो दैट इज व्हाट ए फर्म डज, इट मेक्स वर्किंग स्मूथ बाय असाइनिंग वर्क्स, प्लानिंग इन एडवांस, राइट। सो विदाउट इंटरप्शंस, नहीं तो रुकावट ही रुकावट होगी, राइट। इट ट्राइज टू मिनिमाइज रिडंडेंट एक्टिविटीज, यूजलेस, जो जरूरत नहीं है। अभी एक स्कूल ने सोचा या फर्म ने सोचा कि हम डिजिटलाइज रिजल्ट देंगे, स्कूल ने सोचा, पहले टीचर से बैठ के उसको हार्ड कॉपी बनवाते रहे, फिर कहते हैं अब कंप्यूटर में टाइप करो। अरे भैया दो काम क्यों कराया, सीधा कंप्यूटर में टाइप करके सेव करवा देते। वो पहले वो हार्ड कॉपी बनाओ फिर वो करो। तो फर्म्स कई बार ये चीज रिडंडेंट एक्टिविटीज को मिनिमाइज करती हैं। यूजलेस, रिडंडेंट, रिडंडेंट का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपने लोन का क्राइटेरिया किया, एक फाइनेंस कंपनी है और उसने बोला है कि भैया हम प्रॉपर्टी डीलर्स या से एग्जांपल एक कैटेगरी किसी को भी हम लोन नहीं देंगे। वो भाई साहब गए, पेपर सब ले आए और बाद में देखा जी आपका बिजनेस बताइए क्या है, तो पता चला जी उस कैटेगरी में, तो भैया वो सारा रिडंडेंट हो गया ना। तो इसीलिए इट हैज टू गो स्टेप बाय स्टेप। Redundant, useless activities have to be minimized. Identify what? क्या आइडेंटिफाई करता है? Inefficiencies, जो वेस्टेजेस हैं, इनएफिशिएंसीज, ये जो वेस्टफुल है ना, इनएफिशिएंसी, जहां वेस्ट आएगा ना इनएफिशिएंसी जरूर आएगा, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करके क्या करेक्शन करो। सो आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज, ये देखो बेटा, वेस्ट इनएफिशिएंसी एंड टेक करेक्टिव मेजर। आपको बिजनेस स्टडी में आर्ट ऑफ राइटिंग आनी चाहिए। वर्ड्स देखो, डिसीजन सुनते ही चॉइसेस आएगा, अनसर्टेनिटी सुनते एंटिसिपेशन आएगा, एडवांस सुनते ही फोरकास्टिंग आएगा, इनएफिशिएंसी सुनते ही वेस्टेजेस सुनते ही इनएफिशिएंसी आएगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फोर्थ है इनोवेटिव आइडियाज, नए आइडियाज को जन्म देना। तुम्हें पता है कि प्लानिंग थिंकिंग ही नए को देता है और आपके सामने कई उदाहरण हैं। कभी सोचा था कि रात को 2 बजे बैठ के मैं शॉपिंग कर रहा हूँगा और ड्रेस खरीद रहा हूँगा बिगर पहने, लेकिन आज अमेजोन की साइट पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, रात को 2 बजे भी शॉपिंग होती है। टी शर्ट खरीदनी है, विदाउट ट्राई मंगाओ। अरे कभी सोचा था कि फ़ोन करूँगा, टैब दबाऊँगा, गाड़ी सामने हाजिर हो जाएगी, है ना, ओला उबर, ये सब नए आइडियाज़ हैं। फेसबुक देखो कैसे कमा रहा है, एयरबीएनबी एक भी फ्लैट ऑन नहीं करता, ओयो एक भी फ्लैट ऑन नहीं करता, और ओयो की वर्थ ताज से ज़्यादा है जो इतने होटल्स ऑन करता है। तो ये सब आइडियाज़ ही तो है जो कि चल रहे हैं। अब आप देखो, एयरबीएनबी का एक भी फ्लैट नहीं है, लीडिंग है। अमेजोन की अपनी दुकानें नहीं है, कमा रहा है। फेसबुक का अपना कुछ नहीं है, हम तुम वहाँ सब्सक्राइबर हैं, देखो कितनी एड। सो यू नो दिस आर ऑल इनोवेटिव आइडियाज़। तो क्या है, नए आइडियाज आते हैं एंड दे टेक शेप ऑफ द प्लान एंड दैट इज वेयर द थिंग्स बिकम। इट लीड्स टू ए चैलेंजिंग एक्टिविटी। बहुत आसान लग रहा है ना। अब फ्लिपकार्ट ने पहली बुक अपनी बहुत दूर बैंगलोर में कहीं गांव में भी एक रूरल एरिया के आसपास पहुंचाई थी। खुश हो गए थे यार, ऑर्डर आ गया। बंसल्स को ये नहीं पता था कि ये इनके लिए लाइफ में ये हो जाएगा, राइट। सो इट्स ए चैलेंजिंग एक्टिविटी। क्यों? आइडिया इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। So therefore it's a most challenging activity, but once implemented leads to growth of business. आप देखो ना, कहाँ Amazon पहुंच गया, कहाँ Flipkart पहुंच गया, कहाँ Ola पहुंच गया, कहाँ Uber पहुंच गया, right? आज लोग ग्रोथ, it leads to growth of the business, ठीक है। इतना सारा ग्रोथ हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कहाँ से क्या हो गया, राइट। सो इनोवेटिव आइडियाज, न्यू आइडियाज को शेप देना, that is planning, thinking, executing, getting ideas, right? Next we move on to helps in decision making. मैंने बोला ना, decision making जब भी आएगा choice जरूर आएगी। जब आप decide करते हैं, आप आगे देखते हैं, you look ahead कि भाई अब आगे क्या करना है, फर्म को कहाँ पहुंचाना है। So helps the manager to peep into future, look into future. अब मैंने बोला एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करनी है, तो choices identify करो। एड के लिए क्या लेंगे, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, खान ब्रदर्स को ले, कोहली को ले, ठीक है, कैटरीना कैफ को ले, किस को ले? तो पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ना चॉइसेस, तो ये बेस होता है। तो इट इज अ बेस विच इवैल्यूएट, आइडेंटिफाई चॉइसेस, फिर इवैल्यूएट करना
कि आमिर की ज़्यादा फॉलोइंग है, सलमान की है, कोहली की है, किसको करना है, और फिर सेलेक्ट तो सभी बेस्ट करते हैं, बेस्ट चॉइस। ठीक है, डे टू डे लाइफ में कभी रेस्टोरेंट गए हो? अभी तो जाने की बात नहीं कर सकता, अब तो मुद्दत हो गई ना, क्यों दुखती रख पे सर कदम रख हाथ रख रहे हो। जब रेस्टोरेंट जाते हैं सबसे पहले मेन्यू मंगाते हैं, क्या करते हैं, इतना सारा होता है, चॉइस करते हैं, यार दाल मखनी लेंगे, ये लेंगे, बटर चिकन लेंगे पहले, फिर इवेल्युएट करते हैं, यार इसका ये बेस्ट है, फिर सेलेक्ट करते हैं ना एक, तू और अपना ऑर्डर दे। यही तो है डिसीजन मेकिंग। तीन ही चीज। बेस क्यों लिखा है, देखो बेस, मैंने इसको बेस बनाया, ठीक है, ए फॉर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, एस फॉर सेलेक्ट, तो जब भी डिसीजन मेकिंग आए इसको, ई फॉर इवेल्युएट, बी फॉर बेस्ट। इस बुक में कई जगह आना है बंधु, बेस याद कर लो डिसीजन मेकिंग के लिए, आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, बेस्ट। ऑल्टरनेटिव का मतलब चॉइस, ठीक है। रैशनल, सेटिंग टारगेट, जब आप इसको करते हैं तो इसके बाद आप टारगेट सेट करते हो, भाई मेरे पास खान आ गया, जैसे हुंडई ने सबसे पहले शाहरुख खान को लिया था, पेप्सी ने एक टाइम में तेंदुलकर को लगाया था, तो ये फिर टारगेट सेट करते हैं, इनके आने से हमारी चॉइस। सो इट इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, कि अब हम इतना सेल कर पाएंगे, हम लीडर बन जाएंगे, और ये है। एंड देन यू टेक ए रैशनल डिसीजन कि हाँ ये वाइबल है और ये अटेन किया जा सकता है, इरैशनल बात नहीं कर रहे, ये फिजिबल है, हम लोग इसको अटेन कर पाएंगे। तो दैट इज वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको बताता है डिसीजन मेकिंग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसीजन या तो गलत होगा या सही होगा, पर लेना तो पड़ता है। लॉकडाउन का डिसीजन सही है या गलत, पर लेना तो पड़ा ना, बाद में पता चलता है। डीमोनेटाइजेशन किया, सही है या गलत, डिसीजन लेने के बाद ही तो पता चलता है सही है। अब अगर उबर ने, ओला ने सोचा नहीं होता, डिसाइड नहीं किया होता, तो आज जन्म ही नहीं होता, आज कहाँ इतनी बिलियन कंपनी बनती। ओयो में रितेश अग्रवाल ने अगर ये नहीं सोचा होता, तो आज क्या ताज की, टाटा की वर्थ से ज्यादा होता। ताज की कितनी प्रॉपर्टीज है टाटा की, उसकी एक प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी देखो वर्थ। तो इसीलिए डिसीजन लाइफ में लेने पड़ते हैं, सही या गलत ये तो वक्त बताता है, ठीक है ना। डिसीजन नहीं लेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे, रिस्क लेना पड़ता है। दैट इज ऑल अबाउट लाइफ। लास्ट, स्टेबलाइजेशन स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के बगैर कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। मैंने कहा कॉस्ट कंट्रोल करो, अरे कंट्रोल तो जब करूंगा तुम कोई स्टैंडर्ड सेट करो, है कि नहीं। स्टैंडर्ड ही नहीं है तो कंट्रोल किसको करोगे। तो ये बेस है, प्लानिंग इज द बेस फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। सो यू हैव टू सेट स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड सेटिंग, तो प्लानिंग में गोल सेट करना आता है ना, और उसके बाद हम कई फंक्शंस के डिस्कस करेंगे। प्लानिंग ही अकेला नहीं है, प्लानिंग तो खाली सेट करने का काम करता है। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, ये सब उसको अटेन करवाते हैं। और बिगर कंट्रोलिंग के तो कुछ होगा ही नहीं ना। सब किफ़ायती चाहते हैं ना, पैसा तो बचाना है ना, वेस्टेजेस नहीं करनी, तो कंट्रोलिंग इज देयर, एवरीबडी वांट्स टू डू। सो कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट से कंपैरिजन आता है। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। तुमने बिजनेस स्टडी का पेपर दिया, 80 नंबर का है, तुम्हारे 60 है। स्टैंडर्ड क्या था, 80 मार्क्स, पॉइंट समझ में आया। 60 एक्चुअल, तो क्या करेगा तुम, कंपेयर करेगा ना, फिर विद व्हाट, स्टैंडर्ड। 80 स्टैंडर्ड था, मेरे 60 आए, तो ऐसे ही बैठोगे क्या, नहीं, ये 20 मार्क कहाँ गए, कंपेयर किया, इससे पता चला यार 20 यहाँ कट गए, तो फिर क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे। करेक्टिव एक्शन के लिए पहले स्टैंडर्ड होना जरूरी था, तभी तो हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये आ गया ना करेक्टिव मेजर। सो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्स कि कितना डेविएट किया है, ठीक है। अब हम हर चीज तो कंट्रोल नहीं कर सकते। कंपनी ने कहा 100 बोल्ट बनने, ठीक है, लेकिन हर 100 बोल्ट के बाद 2 वेस्ट होंगे, तो कह रही है 2% वेस्ट है, तो 100 बने, 2 वेस्ट है, तो कहती है ठीक है। लेकिन अगर 100 बने और 10 वेस्ट हो गए तो कंपनी का दिमाग खराब हो जाएगा। 10% वेस्ट, भैया 2% माना था, इतना ज्यादा थोड़ी चलेगा, तो करेक्टिव एक्शन चाहिए। तो प्लानिंग इज द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, आधार है, उसी आधार पे काम होता है। विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग कैन नॉट टेक प्लेस। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। देखा कितने आराम से हमने सारे चीजें पढ़े आराम से। अब आपको मैं एक और टेक्निक बताऊंगा नोट्स बनाने की, याद कराने की टेक्निक। आप लाइक करिए, शेयर करिए, पूरे जितने पॉइंट्स हैं ये सारे याद करवाने की टेक्निक है मेरे पास। पर सस्पेंस अभी तो बना रहे, आज हम इतना पढ़ाएंगे, अब मेरी अगली वीडियो में मैं और बताऊंगा, पर अभी आपको नोट मेकिंग टेक्निक समझाता हूं कैसे होता है, ठीक है।
Now we will go ahead and see our note making techniques, how you make notes. Okay, so now we will make some note making techniques children and we'll try to do that for you. Okay, अब हम अपना note making technique. So now children will discuss that technique of notes. देखो 4 पेज में जो आप नोट्स बनाओगे मैं 1 पेज में बनाऊंगा and you yourself tell 4 pages easy है देखने को या 1. Let's go ahead. Okay, let's see. हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, राइट. सबसे पहले डायरेक्शन. डायरेक्शन में एक चीज होनी जरूरी है, एक्शन. ये क्या बताता है? क्या एक्शन लेना है. फिर गोल क्लियर होना चाहिए, गोल. तीसरा ये गाइड एक्ट करता है. जब आप प्रोजेक्ट भी बनाते हो तो दैट एक्ट्स एज ए गाइड. और मैंने कहा ऑर्डर लेके मार्केटिंग आया, किसको बोला? प्रोडक्शन को. प्रोडक्शन ने सामान किसको बोला? परचेज को. कोऑर्डिनेशन. तो प्लानिंग से ये चारों चीजें इस पॉइंट से आती. नेक्स्ट, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ अनसर्टेनिटी में क्या है? हम एंटिसिपेट करेंगे चेंजेस, फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशन देंगे, रेस्पॉन्सेस. लेकिन ये तो आंसर है रिड्यूसेस का, पर कैन नॉट एलिमिनेट. क्यों भाई? एक रीजन, एक्यूरेट प्रोडक्शन इम्पॉसिबल. दूसरा, एक्सटर्नल. इसको मैंने आपको क्या बोला था बच्चे? मैंने आपको क्या बोला था बताओ? किस चीज के लिए बोला था? स्लेप्ट. इसमें याद रखना, सो मत जाना मेरे भाई, सोने के लिए नहीं बोला है. हाँ, स्लेप्ट. सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग. मैंने बोला ना, देखो क्लैरिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन आएगा और वर्किंग स्मूथ नहीं होगी. तो प्लानिंग क्या करता है? पहले क्लैरिटी देता है, कंफ्यूजन को हटाता है, अवॉइड्स कंफ्यूजन, क्लैरिटी, स्मूथ वर्किंग, और इससे क्या? रिडंडेंट, यूजलेस एक्टिविटीज को मिनिमाइज. ठीक है, जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद करा दूंगा भाई, ये मेरी टेक्निक है. एंड टेक करेक्टिव मेजर्स आफ्टर फाइंडिंग इनएफिशिएंसीज. अगला है इनोवेटिव आइडिया. नए आइडिया को जन्म देना, न्यू आइडियाज. ठीक है, और नए आइडिया आते हैं विच इज अ चैलेंजिंग एक्टिविटी, और ग्रोथ ऑफ बिजनेस करते हैं अगर हम उसको इंप्लीमेंट कर पाए. फिर आ गया मेरा डिसीजन मेकिंग. आपको मैंने बोला कुछ याद मत करो यार, बेस याद कर लो. बेबी को बेस पसंद है, वो नहीं, बेस, वो बास होता है. लुकिंग अहेड, चॉइसेस, इवैल्यूएट, बेस्ट. ठीक है ना, और सेट टारगेट. एक रैशनल डिसीजन भी है, यहां नहीं आए. तो यहां पे आपको क्या याद रखना है मेरे बच्चे? व्हाट डू यू हैव टू रिमेंबर इस वाले के साथ? इसके साथ आपको क्या याद रखना है? बेस. याद है ना, बेस. बी फॉर बेस्ट, ए फॉर ऑल्टरनेटिव, एस फॉर सेलेक्ट, ई फॉर इवैल्यूएट. एंड अब हम आखिरी में आ गए. इसका एक ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना. ठीक है ना, गोल सेट करो, एक्चुअल को कंपेयर करो, करेक्टिव एक्शन लो. हेल्प्स इन कंपैरिजन. देखो बेटा, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट. फाइंडिंग एंड करेक्टिंग डेविएशन, और इसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ कंट्रोल. ये कंट्रोल का बेसिस है. तो देखो सबसे पहले, अब इतना इजी है. अब आप देख लो, ये पूरा डायग्राम बन गया, सुंदर सा लग रहा है, और पूरे नोट्स बना दिए. यही तो लिखना होता है, सारा थोड़ी वहां रट के आएगा. जस्ट, और इसी से केस स्टडी होंगी. जस्ट पेन इट डाउन. कोई कहता है डायरेक्शन लिखो, एक्शन, गोल, गाइड, कोऑर्डिनेशन. 4 लाइन बन गई. एक्शन क्या लेना है? गोल्स क्लियर होने चाहिए, गाइड की तरह एक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, एक्शन. ठीक है, और इसमें अनसर्टेनिटी में कैन नॉट एलिमिनेट, ओनली यू कैन रिड्यूस. ठीक है, ओवरलैपिंग, वेस्टेजेस, कंफ्यूजन, ये नए आइडियाज को जन्म देता है. ये बेस है, एवेल्युएट, और ये कंपेयर, और ये सेलेक्ट. सो नाउ सी हाउ इट बिकम्स इजी. आवर क्लासेस विल इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स. डेफिनेशन कैसे याद करने, पॉइंट्स कैसे याद करने, 100% गारंटी. राइट, एंड नाउ आई विल शो यू माय नोट्स, एनसीईआरटी. और ये देखा, एक छोटा सा हम टेस्ट भी साथ साथ लेंगे. राइट गाइस, एंड विल कम टू दैट. So children, this is your NCERT book. Now what I want to show you, पहले आप उसको देखो, and then you will realize what I want to show you, right guys? ये देखो, जैसे NCERT अगर आप देखोगे तो you will see planning provides direction.
बाई स्टेटिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इट प्रोवाइड्स फॉर एक्शन। देखो एक कीवर्ड आ गया एक्शन। एंश्योर दैट गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड, देखो मैंने दूसरा कीवर्ड ये निकाला, सो दैट दे गाइड डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। एम्प्लॉयज आर अवेयर दे मस्ट डू अचीव, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन कोऑर्डिनेशन। 4 कीवर्ड लगा दिया और ये आंसर बन गया। अब एनसीईआरटी में सारा कुछ पैराग्राफ में दिया है, अब वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे मेरी वीडियो देख देख के पॉज करके, तो तुम्हें समझ में आएगा कितना आसानी से हमने ये काम किया है, राइट। एंड देन आई विल शो यू माय नोट्स ऑल्सो, चाहे वो लीनियर बने हैं पर फिर भी देखो हमने कैसे उन नोट्स को बनाया है। आई मेक यू शो दैट नोट्स गाइज एंड जस्ट सी द नोट्स आउट हियर। Now these are my notes. Now you see, I believe in writing less and scoring more. Unnecessary ज़्यादा देखो। अब importance of planning देखो, planning provides क्या आ रहा है बेटा, डायरेक्शन। अब आप यहाँ ध्यान से देखो हमने अपने नोट्स में क्या किया हुआ है, क्लियरली डायरेक्शन और एक्शन किया है कि नहीं, कीवर्ड्स को बोल्ड कर दिया, ये एग्जामिनर को होना चाहिए। गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज ए गाइड, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हैं। और देखो बेटा बार बार प्लानिंग लिखने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग तो ऊपर है ही है। सो प्लानिंग बाय स्टेटिंग इन एडवांस, ठीक है, दैट इज हाउ रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आप देखो ये सारे एनसीईआरटी से पॉइंट्स हैं। और देखो लुकिंग अहेड, एंटिसिपेट चेंजेस, सोल्यूशन, कांट बी एलिमिनेटेड, कैन नॉट एलिमिनेट बिकॉज, ये देखो बियॉन्ड। आपको इजी हो जाएगा, क्यों हम अननेसेसरी इधर उधर पढ़े। योर लाइफ शुड बी मेड सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ऐसे ही लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंप्लेक्स में आ जाओ, बिंदास होके नंबर लाओ। बेस्ट स्टडी टेक्निक, ठीक है ना, यही बीएसटी है। जब याद कराना सिखाऊंगा ना, तुम कहोगे यार बिजनेस स्टडी कभी इतनी इजी थी, हमें पता ही नहीं चला। आओ गाइज एक टेस्ट ले लेते हैं, है ना। टेस्ट से डरो मत, तुम्हारे को आज जो पढ़ा है फटाफट मैं टेस्ट कर दूंगा, ताकि तुमको ये लग जाएगा कि हाँ भाई क्या था, ठीक है। ओके गाइज, अब हम टेस्ट पे आते हैं, बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट लेते हैं। आओ हम फटाफट अपना टेस्ट शुरू करें। और आप बहुत सिंपल है, अब तो प्लान ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आने लग गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा हमारे लिए। अब हम आपका प्लानिंग जो आज पढ़ा है उसके ऊपर सिंपल सा टेस्ट ले रहे हैं। फटाफट देखो गाइस, राइट नाउ प्लानिंग के ऊपर टेस्ट है। आप देखो क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आपने आज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ा, अब बताइए इसमें से कौन नहीं है। डायरेक्शन तो बहुत चीख चीख के बोला, डिसीजन था, इनोवेटिव था, ओवरलैपिंग था या नहीं था, तो आंसर क्या होना चाहिए। आइए देखें सही जवाब, यस, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये 4 ऑप्शंस, और क्या जवाब है इसका बताइए। विच इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हेल्प्स इन कंपेयरिंग। मैंने बहुत चीख चीख के बोला था, कंपैरिजन कौन करवाता है, कहां कंपेयर, आपने नंबर, हाँ याद आ गया, कंट्रोलिंग, यस दैट इज द राइट चॉइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, सवाल नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से फॉल्स कौन सा है बताना है। अनसर्टेनिटी के लिए, अनसर्टेनिटी में एंटिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, नहीं सोल्यूशन करते हैं। फिर हेल्प्स मैनेजर टू डील, एलिमिनेट्स रिस्क, क्या वो एलिमिनेट कर देता है रिस्क, करता है क्या, नहीं, तो क्या सही जवाब होना चाहिए, सी। आइए देखें, नहीं, डी, यही सही जवाब है। देखा, जो पढ़ा एकदम आराम से रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डिसीजन मेकिंग, डज नॉट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएट, बेस को याद करो भाई, बेस, हेल्प्स इन बेस्ट, नन ऑफ दिस। डिसीजन की बात ही किस पे करते हैं, अल्टरनेटिव पे, तो कह रहा है डज नॉट, सोचना ही नहीं है, ए इज द राइट आंसर। बस देखो सिंपल है, ऐसे ही पढ़ाई होती है और ऐसे एकदम आराम से सारे गए। हाँ जी, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन में एक्शन आता है, ये तो पहले ही ठीक हो गया, फॉल्स बताना है। कोऑर्डिनेशन याद है डिपार्टमेंट्स में, गोल्स वेल डिफाइंड, एलिमिनेटिंग रिस्क, रिस्क कहां पे आता था भाई, हाँ कहां पे आता था इसमें, नहीं, अनसर्टेनिटी, उड़ाओ ना फिर, डी, खत्म, राइट। लास्ट क्वेश्चन गाइस, अगला आखिरी सवाल इस टॉपिक का देखो गाइस, मैच करो फटाफट, खुद ही मैच करो, करो जल्दी, तभी फायदा होगा ये पढ़ाई करने का। डायरेक्शन, मैंने खुद बोला था डायरेक्शन के लिए क्या होता है,
रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, देखो किससे मैच होगा, देखो इनोवेटिव आइडियाज, फटाफट करो गाइस, इनोवेटिव में क्या होता है, हाँ पहला ये एकदम सही जवाब है। दूसरा, हाँ एंटिसिपेशन होता है, इनोवेटिव आइडिया। हाँ ओला उबर आसान काम था या चैलेंजिंग काम था, चैलेंजिंग, ये देखो। अगला कंट्रोलिंग, मैंने बोला था कंट्रोलिंग में क्या आते हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन से क्या पता चला कितना डेविएट किया, एंड ओवरलैपिंग इज मिनिमाइजिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। सो दिस इज हाउ वी रिवाइज प्लानिंग, राइट। तो अब हम आपको आगे बताएंगे प्लान ऑफ एक्शन। गाइस एक प्लान ऑफ एक्शन है, यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेट करो कि मैं बहुत अच्छी और आपके लिए बना के लाऊं। मूवी देखिए दिल चाहता है, इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो वी आर नॉट परफेक्ट, आप उसको करो, लाइक सब्सक्राइब, टेल अस योर व्यूज, फास्ट है, स्लो है, बोरिंग है और इंटरेस्टिंग करना है। और ये डाउनलोड करो एग्जाम्पलर पॉइंट का ऐप गूगल प्ले स्टोर से, नोट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, करियर ऑप्शंस, न्यूज़, टेस्ट, कई सारी चीज़ें मिलेंगी गाइस, ऑनलाइन का ज़माना है, आप उसको यूज़ करो, ठीक है। एंड देन आई विल टेल यू फर्दर। नाउ please let us know how was the lecture, how all we can improve, and if all goes well, in my subsequent lectures I'll introduce the learning technique also, note making, PPT, all how they were, how did you find, do let me know. Can provide you notes, do ask us for that also. Once you go ahead and see Exemplar Point, our website is there, you can go and do that, register yourself, get everything for that, right, for free. You will get notes and many more things, guys. This is Keshav Agarwal signing off for the day. Wait for my next lecture where we go ahead and do limitation of planning, and we'll continue this series. And don't forget, I'll introduce the learning techniques. Bye guys, this is it for the day.